आज हम लोग एरे के बारे में देखेंगे और पूरा लेक्चर ये हमारा एरे का है। तो आप लोग एरे के बारे में पहले से जानते हैं दैट एरे इज द कलेक्शंस ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा. So array are used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variable for each variable. Like as suppose that example मैं int a लिया, a एक नाम का एक वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल के अंदर मैं दो वैल्यू रखना चाहता हूँ 10 और 20. तो जब भी हम इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, मान लीजिए int a is equal to 10, 20, तो ये हमारा सिंटैक्स एरर बताएगा दैट a दो वैल्यू रख रहा है जो कि पॉसिबल नहीं. ये कोई हम तीसरी वैल्यू रखना चाहे तो भी पॉसिबल नहीं है because single variable can hold a single value. Then how we can hold multiple value of similar data types in a single variable? So to work on this concept, a new concept will arise known as the array. So array are used to store multiple values in a single variable. Array are used to store multiple values in a single variable. ठीक है, and instead of declaring separate variables for each other. ठीक है. So to declare an array, we need to define the types of variable types and specify the name of the array followed by a square bracket as well. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक array डिक्लेयर करना चाहता हूँ. Suppose that we have taken a variable name as a char and we give the size of char like as the 4. कि हम इस char नाम के वेरिएबल के अंदर केवल 4 कैरेक्टर रखेंगे. So we use a bracket, square bracket, and inside we give the size of that variable. Then define what is the data type of this variable. So obviously अगर हम string चाहते हैं then we need to define as a string data type for this char variable which size is 4. Means we can store 4 elements inside a variable known as a char variable. Now suppose we have to declare a variable that holds an array for 4 strings and we want to insert a value. Okay. So in that case, either initially we can take array as defined as your only size and we are not still giving any values. When we give input, then we give cin function and with the help of cin function we give the input value for that array. दूसरा अप्रोच हमारा यही कहता है कि भाई हम डिक्लेरेशन टाइम पे ही वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें. सो वी कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग like this also, like as the string is the data type. After that variable name char, use square bracket, insert the value 4, assignment operator, then we use a bracket to hold the value. Like as कि हमने कैरेक्टर लिया ABC पहला वैल्यू, फिर डबल कोटेड कॉमा के अंदर DEF सेकंड वैल्यू, फिर कॉमा GHI थर्ड वैल्यू, फिर कॉमा डबल कोटेड में JKL फोर्थ वैल्यू. JKL. After that, we apply semicolon. So this one is the second approach, how we declare an array and we put the value at the time of declarations. So this concept also works. Suppose we want to create a string of integer data type. So we take int data type
Then variable name, like as a we take a, use square bracket to define the size, like as a 4, and at the time of declaration we want also assign the value like as a 10, comma 20, comma 30. After that we use semicolon. So this one is a also way to declare of an array कि जिस टाइप का हमें वैल्यू रखना है उस तरीका का डेटा टाइप हम यूज करें, वेरिएबल का नाम लें और वेरिएबल की साइज मींस एरे की साइज है। सो दिस वन अगर मैं इसकी बात करता हूं इस पूरे की, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि हमने एक एरे लिया है जिसका नाम कैर्स है, उसकी साइज 4 है और उसके अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे सारे के सारे वैल्यू हमारे स्ट्रिंग टाइप के होंगे। या दूसरे केस में हम ये पढ़ेंगे कि हमने एक एरे लिया है जिसका नाम ए है, उसके अंदर 4 वैल्यू डाली गई है और चारों वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने 3 ही वैल्यू डाला है तो चौथा हमारा नल वैल्यू लेगा। तो इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं या एरे को इनिशियलाइज करते हैं। नाउ हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे? Access the element of an array. How we can access the element of an array? So we can access an array element by referring the index number. We can access an array element by referring to the index number. We can access an array elements by referring the index number. And we also know that the indexing of an array will start from 0. Means if we use index 0, then we find first value. So for example, अगर मैं कहूँ कि we have a array of cars, and the data type of this is string, and the size of this array is 4. We assign values like as a हमने लिखा x, comma y, comma z, comma e. After that, we want to print the value of x. So we use cout with insertion operator. After that, we use a character, array name. That one is a class. और कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, किस इंडेक्स नंबर पे चाहिए, तो हमें 0 वाले इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से हम एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल, हमारा कोई मतलब की चीज नहीं है। हमें क्या है कि भाई सारे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है। हमने एक ब्लैंक एरे लिया हुआ है और उस एरे की जितनी साइज है हमें उतनी वैल्यूज को इंसर्ट करना है और उतनी वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो इस केस में
जैसे कि हम एक एरे बनाते हैं और उस एरे में जैसे यही एरे बनाया हुआ है, अब इसमें मुझे चारों वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड ए को प्रिंट करना है। तो एक तो तरीका हमारा ये है कि भाई मैं हर एक इंडेक्स को बार बार प्रिंट करता चलूं। तो ये हमारा कोई स्मार्ट तरीका नहीं है। अगर हमने एक एरे लिया है जिसके अंदर 1000 एलिमेंट हैं, तो क्या हम 1000 लाइन को प्रिंट करेंगे या सी आउट फंक्शन 1000 लाइन के लिए चलाएंगे? नहीं। तो इस तरीके के केस में हम फॉर लूप को एरे के साथ मर्ज कर देते हैं। जैसे अगर सेम एग्जांपल की हम बात करें और मुझे इन सब का यूज नहीं करना, मीन्स अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं करना है, देन वी यूज फॉर लूप। तो फर्स्टली वी टेक फॉर लूप और इसके अंदर हम कोई एक वेरिएबल अंदर लेंगे, लाइक जैसे मैंने एक आई वेरिएबल लिया है, इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करेंगे। सेमी कॉलम फॉर लूप बताया था कल मैंने कि पहला फील्ड हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा फील्ड कंडीशन होता है और तीसरा फील्ड मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे पहले वाले केस में आई की वैल्यू 0 मीन्स इनिशियलाइज किया, दूसरा कंडीशन दे रहे हैं कि आई की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, तो आई लेस देन 4 सेमी कॉलम कैसे जानी चाहिए भाई, कंटिन्यूअस ऑर्डर में, मीन्स आपका मॉडिफिकेशन कैसा हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ हो रहा है। तो यहाँ से आई की वैल्यू 0 रीड करेगा, आई की वैल्यू 1 रीड करेगा, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3। जब इस फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे अब कि वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, सो वी यूज सी आउट फंक्शन इंसर्शन ऑपरेटर, देन वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ cars 0, cars 1, cars 2, cars 3. So we simply print cars square bracket and the value of 5. तो यहाँ पे जब i की वैल्यू 0 रीड करेगा तो 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 1 रीड करेगा 1 वाली वैल्यू के इंडेक्स को प्रिंट करेगा, 2 करेगा तो 2, 3 करेगा तो 3। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं या वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर सी इन का फंक्शन का हम यूज करेंगे देन वी इंसर्ट द वैल्यू, और सी आउट का हम यूज करेंगे देन वी प्रिंट द वैल्यू। अब दूसरा अप्रोच ये है कि क्या जब हम एरे के साइज को, एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्या हमें एरे की साइज देना जरूरी है? So it is not necessary to specify the size of array, and if we do not this, then it only will be take as big as the element that are inserted into the array. जैसे हमने मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना रहे हैं सेम, और इसका साइज हम नहीं दे रहे हैं लेकिन वैल्यूज दे रहे हैं, लाइक ऐसे मैं इंट नंबर लिखता हूँ, इंट ए, और उसके अंदर मैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे हमने साइज नहीं दिया हुआ, पहले वाले के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइज देते हैं। तो साइज देने का मतलब ये है कि भाई एक एरे फिक्स करेगा जिसकी साइज 4 होगी, मींस
4 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए मेमोरी में ब्लॉक फिक्स करते हैं। चाहे हम 2 यूज करें, चाहे 1 यूज करें, चाहे कुछ भी ना यूज करें, लेकिन फिर भी वो 4 मेमोरी को रिजर्व करके रखेगा 4 सेल्स के बराबर। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, सो ये डायनेमिकली रूप से लेगा। अगर हम 3 एलिमेंट ले रहे हैं तो 3 एलिमेंट के साइज के बराबर स्पेस एक्वायर्ड करेगा। 4 एलिमेंट डाल रहे हैं तो 4 एलिमेंट के बराबर स्पेस एक्वायर्ड करेगा। सो इट इज गुड इन द प्रैक्टिस दैट कि हम यहाँ पे साइज को मेंशन ना करें। ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज, दूसरा एडवांटेज ये भी है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक एरे की साइज को 4 फिक्स कर दे रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मुझे जाके पता चल रहा है यार कि एरे के साइज तो 6 होनी चाहिए थी, तो फिर हमारे लिए गड़बड़ी हो गई। हम जाएंगे पुराने कोड को वहां चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमने एरे के साइज को नहीं लिखा है तो हम 6 यूज करें या 60 यूज करें, जितना यूज करेंगे उतना देगा। तो वो सारे प्रोग्राम जो आप लोगों ने सी में बनाए हैं, वो सारे प्रोग्राम आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। एरे के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए थे। सॉर्ट द एरे, रिवर्स द एरे, क्रिएट द एरे, प्रिंट द एरे, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर या प्रिंट Fibonacci सीरीज, फाइंड फर्स्ट एलिमेंट, फाइंड फर्स्ट लास्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, सेकंड लास्ट एलिमेंट। तो बहुत सारे प्रोग्राम वहां पे आपको प्रैक्टिस कराए गए थे। सेम प्रोग्राम हमारा यहाँ पे भी बन सकता है।